Good morning, students. Today I'm going to teach you one chapter from your English grammar, that is the voices. Now, it is for the council students of the senior batch, but this also goes for the juniors as well because it is included in your syllabus as well, and this is an important part of your syllabus that we must all go through. Okay, so until not wait much further, and let's move on to what are the voices. Voices are something that you have already learned and you are acquainted with during your junior years, that is your class 6 to class 10. You were taught in English grammar about the voices. In this chapter we will just do a small recap of whatever we had already learned in our junior classes. So let's move on to it quickly. Now first let's see what is the definition of voices. What is the definition of voices? Voice refers to the form of a verb that indicates when a grammatical subject performs the action or is the receiver of the action. So what is a voice? Voice is when the verb is doing, the subject is doing or performing the action. Okay, and in case that is in the case of active voice, and in the case of passive voice, what happens when the subject is the receiver of the option of the action. This is in the passive voice. What it is we will understand if we see a small uh, example, and as we go through we will definitely try to understand it in a better way. Now first let's see into the categories of voices. Voices can be divided into active voice and passive voice. As we all know, as I told you, that when active voice is when the subject performs the action, and the passive voice is when the subject is the receiver of the action. This is the basic difference between active voice and the passive voice. Now let's see what are active voice and passive voice in how we can define it. So what is an active voice? As I told you, when a sentence is written in the active voice, the subject performs the action. Okay, as I told you already, when a sentence is written in the active voice, the subject is the one who performs the action. And in passive voice, when a sentence is written in the passive voice, the subject receives the action. This is, I've already told you. Let's see with two examples. Example 1, for example, monkeys adore bananas. So monkeys are the what? Monkeys are the subject. What they are doing? They adore whom? The banana. Bananas are the object. Okay. Next, bananas are adored by monkeys. See, here bananas is the receiver of the action. Here in passive voice, as soon as we change in passive voice, bananas become the subject and bananas are the receiver of the object. Bananas are done what? Bananas are adored by whom? The monkeys. Okay, so this is the difference. Let's move on to a better understanding of active voice. So let's take the previous example only. We are taking the example monkeys adore bananas. Okay, so first, what is the monkeys? As I told you, monkeys are what? Monkeys are the subject in the active voice. Adore is what? Adore is the verb. And then bananas are what? Bananas are the object. Okay, so what are an active voice? Here the subject monkey performs the action described by the word adore. So here it is an active voice. What does it do? The subject performs the action that is being meant or described by the verb. Clear? Now let's move on to the passive voice. Passive voice, we are again taking the same example. We are just changing into passive voice right now. Okay, see here, bananas are adored by monkeys. So what are the bananas? Bananas are the subject over here. As I told you, bananas are the subject. So what was the object in the active voice becomes the subject in the passive voice. You can see they are actually
interchanging their location or their position in a sentence. The object in the active voice becomes the subject in the passive voice. Here the subject is what? Here the subject are banana. And then here adored is a verb. Then monkeys, here the monkeys which was subject in the active voice became object in the passive voice. Then we are here being introduced into two more things. See, except the ones that were already present in the active voice, also we are using two more things. What we are using? We are using one helping verb. The helping verb is what? Are. Okay, and what we are using next? We are using the preposition by just before the newly formed object in the passive voice. Clear? So what is the passive voice? A sentence is in the passive voice when the subject is acted on by the verb. Okay, when the subject is acted on by the verb. Okay, now let's very minutely go through the rules and regulations to follow. Now these rules and regulations are something I want you all to note down in your copy. This is extremely important. These are extremely important, I repeat again, for effectively changing active voice into passive voice. First, we'll start with the rule number 1. What is the rule number 1? To change the statement from active to passive, just follow the formula. Here what we do? Subject to object, and here subject is performing action on the object, and that is, in case of active voice, the subject becomes the object. If you are changing the active to passive, the subject becomes the object. And if you're changing from passive to active, what you do? You change from object to subject. Then number two rule is, as we had already seen in the last example, the preposition by should be placed before the newly formed object of the statement in passive voice. You remember we wrote bananas are adored by the monkeys. By monkeys are the newly formed object in the passive voice, and it is preceded by the preposition by, okay, which was placed before it while we convert the active sentence into a passive sentence. Okay, what is the third rule? The tense of the verb. This is very important, and this is one point that most of the students do mistake. Everyone, mostly 90% students are erroneous at this point in rule number 3. So try to understand it very carefully. Don't worry, this is not something rocket science. This is something very easy. I'll definitely help you for your understanding better, but I would like every one of you to kindly note it down in your copy if you want to change this active into passive effectively, because if you follow the rules properly, you cannot go wrong. Okay, English grammar is something like mathematics. It's something like algebra. If you follow the formulas, you are not going to go wrong anywhere. Okay, so what is the third and the most important rule? The tense of the verb and the helping verbs should be used appropriately. Okay, what is it? For example, for instance, there are 2 or 3 things that you should remember. What? Future continuous tense. We have all learned tenses in our earlier classes. We do have it in our 11 and 12 syllabus as well. We'll do a recap, don't worry, but I know that all of you know what are called the future continuous tenses. So future continuous tense and perfect continuous tenses do not have passive forms. You understand? Future continuous tense and perfect continuous tenses do not have passive forms. You should remember this very carefully. Next, intransitive verbs, meaning verbs which do not have any object.
cannot be expressed in the passive voice. That what does it means? Whatever verbs we are using in case of a statement in an active voice are all transitive verbs. What are transitive verbs? You have all done it in your junior classes. Transitive verbs are those verbs which have one object. Okay, next, passive form. Now we are coming here, we have got the rules. We are going into one most crucial rule to how to effectively change the active voice into passive voice, and this one is extremely important. Please follow it properly. Passive form is made by using the past participle or the third form of the verb. Whatever is past participle, that is the third form of the verb as well, along with the suitable form of be, that is, are and am. ये मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ पूरा रूल. तो पहले का रूल क्या है? पहले अगर आपको एक्टिव से पैसिव करना है, रूल नंबर 1 में लिखा है, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करना है, बस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो इंटरचेंज कर देना है. और अगर आप पैसिव से एक्टिव करना चाहते हैं, आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में उसका जो जगह है वो आपको इंटरचेंज कर देना पड़ेगा. ठीक है. सेकंड रूल क्या है? यहाँ पे देखिए, हमने ऑलरेडी पहले एक एग्जाम्पल किया था, दैट द मंकीज आर अडॉर्न्ड, द बनानाज आर अडॉर्न्ड बाय मंकीज. ठीक है. वो करते वक्त मैंने आपको समझाया था कि ये जो आपका नया ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है, मंकीज अडोर बनानास, ये एक्टिव वॉइस में था. इसको हमने जैसे पैसिव वॉइस में किया, ये देखिए हमने इंटरचेंज कर दिया. कैसे? बनानास जो था वो पहले आ गया, वो सब्जेक्ट में बैठ गया, और मंकीज जो था वो ऑब्जेक्ट में बैठ गया. तो मंकी हुआ क्या? मंकी हुआ पैसिव स्टेटमेंट में, मंकी हुआ द न्यूली फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट. अगर आपको याद है, मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा. अगर आपको याद है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे मंकी जो है ये नया ऑब्जेक्ट बन गया था. इसके पहले का जो एग्जाम्पल है, इसका पहले का जो एग्जाम्पल है, देखिए हमने यहाँ पे दिया था मंकीज़ अडोर बनानास. ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में था. अब इसे हम जैसे पैसिव वॉइस में किए हैं, इसको हमने क्या किया है? बनानास अडोर्ड बाय मंकीज़. जो पहले जो बनाना था जो ऑब्जेक्ट में था, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, और यहाँ पे जो मंकी पहले सब्जेक्ट हुआ करता था, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया. उसके पहले हमने क्या किया? एक प्रीपोजिशन लगाया है बाय. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो. ठीक है. तीसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण एक रूल, जिसे खासकर बच्चे ज़्यादातर मिस कर देते हैं, ज़्यादातर गलती उनका यही हो जाता है. क्या महत्वपूर्ण रूल है? कि जो वर्ब है, जो वर्ब का जो टेंस है, यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब्स का जो टेंस है, जैसे आर, इज, एम, इसका जो टेंस है, इसको आप बहुत ध्यान से बैठाइए. मतलब टेंस अगर आपका चेंज होगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब का टेंस भी आपका चेंज होगा, वो आपको दिमाग में रखना है. ठीक है. यहाँ पे चौथा रूल क्या है? फ्यूचर का. हम सब ने टेंस पढ़ा है, हमने 6 से लेके 10 के अंदर आपने टेंस सबको ही पढ़े हैं आप. ठीक है. तो आप सबको पता है व्हाट आर द टेंसेस. यहाँ पे जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये दोनों टेंस से में अगर कोई एक्टिव सेंटेंस बनती है, ये कभी भी पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं होगा. ओके, ये कभी भी चेंज नहीं होगी. डू नॉट हैव पैसिव फॉर्म्स. क्लियर? अच्छा, पांचवा रूल क्या है? जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होता है? जिस वर्ब्स का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये सारे वर्ब्स को आप कभी भी पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो सारे स्टेटमेंट्स को चेंज किया जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो सारे वर्ब्स ट्रांसिटिव वर्ब है. ठीक है. अब आया छठा रूल, और ये रूल है क्या? जो आपको इफ़ेक्टिवली बहुत हेल्प करेगा कि आप कैसे
इसका फॉर्मेट कैसे होगा, इसका फॉर्म कैसे पढ़ पाओगे? क्या क्या बोला है यहाँ पे कि पैसिव फॉर्म अगर आप बनाना चाहते हो, वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेना है। पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम ही चीज़ है, आपको ये लेना है विथ सुइटेबल फॉर्म ऑफ बी का स्विटेबल कोई फॉर्म आपको चूज़ करना है, ईज आर एंड एम एक्सेट्रा। अब बी का स्विटेबल फॉर्म को आपको किस हिसाब से चूज़ करना है, आपको उस हिसाब से चूज़ करना है जैसे कि उसका टेंस रहे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी what I have one chart ready for you. I want all of you to note it down because this is extremely vital for every one of you to effectively change this active voice into passive voice, because it is a proficiency among students that they mix up the tenses, as I already discussed before. So I want all of you to note this chart down, and this, if you learn this chart by heart, you are not going to make a mistake ever in your life in changing from active to passive. देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल तैयार किया है, आई हैव मेड अ टेबल. ओके, सो in case of a simple present tense, what is the format? In active voice, what is the format? The format is subject plus verb plus object. This is in the simple present tense. In active format, active form. Okay, और active voice क्या है, हमने क्या लिखा है, subject लिखा है, verb लिखा है, object लिखा है. ठीक है, अब आते हैं पैसिव वॉइस में. जैसे हम इसको एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं, हमने क्या किया, पिछले छठा रूल आपको याद है, हमने वहाँ पे क्या बोला था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और उसके साथ बी का एक फॉर्म यूज़ करना है, ईज, एम, आर एक्सेट्रा. तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव फॉर्म अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस ईज और एम और आर डिपेंडिंग अपॉन प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन एंड द टेंस एज वेल. क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट है तो ईज एम ईज बैठेगा. अगर ईज बैठा तो क्या मतलब है, तो ये सिंगुलर नाउन है. ठीक है, आर बैठे, ईज और एम बैठेगा तो सिंगुलर नाउन है, आर बैठेगा तो प्लूरल नाउन है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल पास्ट टेंस में भी सेम है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब. इसका वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में बैठेगा, डेफिनेटली पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में होगा, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिमिलरली पेज पहले वाला ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज क्यों होगा, अगर सिंगुलर नाउन है तो वॉज होगा, वेयर होगा तो अगर प्लूरल नाउन है तो. ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये ईज की जगह वॉज हो गया बिकॉज ये प्रेजेंट की जगह पास्ट हो गया है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इतना भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट. अगर आप ये याद कर ले तो ज़िंदगी में कभी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कोई भी टेंस ये दे दे आपको चेंज करने की, मतलब आपको चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, वी कम टू सिंपल फ्यूचर. सॉरी द स्पेलिंग मिस्टेक अबाउट इट, इज गोइंग टू बी सिंपल फ्यूचर. ठीक है, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं, वही सेम सब्जेक्ट प्लस हम यूजुअली फ्यूचर टेंस करते वक्त विल और शैल के इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. ओके, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अगर हम पैसिव में चेंज करना चाहते हैं, सेम सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. यहाँ पे देखिए हम बी यूज़ कर रहे हैं, पिछले से हम ईज और वॉज यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम बी यूज़ कर रहे हैं, विल शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये रहा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट आ गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, इज़ ईटिंग, इज़ डूइंग, इज़ सिटिंग, इज़ राइटिंग, इज़ प्लेइंग. ये सारे आपका आईएनजी अगर आपका ऐड होता है वर्ब के साथ तो ये कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस ईज प्लस और एम और आर प्लस वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्लस ऑब्जेक्ट. ये रहा आपका एक्टिव वॉइस. अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर, सॉरी सब्जेक्ट प्लस ईज
और एम और आर प्लस बीइंग। यहाँ पे देखिए बी हमने यूज़ किया था फ्यूचर के लिए। यहाँ पे हमने बोला था कि बी का तरह तरह के हमको यूज़ करना है, इज़, वॉज, एम, आर, बीइंग, बीन, ये सारे आता जाता जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बीइंग यूज़ कर रहे हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, ईज के जगह वॉज हो जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस वर्ब इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही आईएनजी यूज़ करके प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे भी अगर हम पैसिव करते हैं सेम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, यहाँ पे बस वॉज और वेयर को आपको डिफरेंटली यहाँ पे प्लेस कर देना है। वहाँ पे भी बीइंग ही यूज़ होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम सब ने पढ़ा है। हैज़ और हैव अगर आपके वर्ब के सामने लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिंगुलर एंड प्लूरल, हैज़ होगा कब, अगर सिंगुलर नाउन होता है तो हैज़ होता है, हैव होगा कब, अगर प्लूरल नाउन होता है तो हैव होता है। यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस करने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द नाउन्स प्लस वर्ब इन present perfect tense plus the object. okay, इन केस ऑफ चेंजिंग इनटू पैसिव हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वही सेम कर रहे हैं, हैज़ प्लस हैज़ और हैव डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द नाउन प्लस बीन, BEEN हम यहाँ पे यूज़ कर, देखिए हमने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर के टाइम में हमने ईज़ वॉज ऐसे करके यूज़ किया था, ईज़ वॉज, और फ्यूचर के टाइम में हमने बी यूज़ किया था, कंटिन्यूअस के टाइम में हमने बीइंग यूज़ किया था। अभी परफेक्ट में टाइम में हम क्या यूज़ करेंगे, बीन, BEEN, यहाँ पे BEEN मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसका भी हम टेंस इसके साथ साथ ही चेंज कर रहे हैं, जैसे हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था। ठीक है, अब उसके साथ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये सेम ही रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। मिनट, अच्छा, अब आया हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट भी पहले जैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस हैड, जो क्योंकि ये पास्ट है तो ये हैड में आ जाएगा, प्लस आपका वर्ब जो परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो सेम ही है इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड, वही पहले वाला जैसे परफेक्ट में यूज़ हो रहा था बीन, तो हम यहाँ पे परफेक्ट में बीन यूज़ करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। यहाँ पे लास्ट में आता है क्या, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट भी बहुत सिंपल है, विल, शैल, जैसे फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे हैड, हैज़ ये सब यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से हैव का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल और शैल क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर है, परफेक्ट समझाने के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब, वर्ब का हम परफेक्ट टेंस में लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, वही सेम होगा हमारा पासिव, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट प्लस परफेक्ट, दिस विल बी सेम लाइक दैट, सब्जेक्ट वही हमारा सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे कुछ और सारे रूल्स हैं जहाँ पे प्रोनाउंस चेंज होता है एक्टिव से पैसिव। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने टेंस चेंज होते हुए देखा है, अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रोनाउंस जो है वो चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है, अगर एक्टिव में प्रोनाउन आई है तो पैसिव में वो मी बन जाएगा। ठीक है, अगर एक्टिव में प्रोनाउंस यू है तो पैसिव में ये प्रोनाउन यू ही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में अगर प्रोनाउन शी यूज़ कर रहे हैं हम तो पैसिव सेंटेंस में हम यहाँ पे हर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर एक्टिव सेंटेंस में हम वी यूज़ कर रहे हैं तो पैसिव सेंटेंस में यहाँ पे ये अस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दे, अगर एक्टिव फॉर्म में रहता है, पैसिव फॉर्म में ये देम हो जाएगा। ठीक है, ये आप नोट करके रखिए बिल्कुल, ये दोनों टेबल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये दोनों आप पक्का नोट करके रखिए, क्योंकि अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हो तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप चाहते हैं इसका तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, बाद में आप नोट कर दीजिएगा, बट इसे आप सेव करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज मोमेंट यू चेंज इट। ओके, तो फिर ही अगर आपका एक्टिव फॉर्म में होगा तो पैसिव में हिम हो जाएगा। एक्टिव में अगर इट रहता है, यहाँ भी यू की तरह ये पैसिव में इट ही रहेगा। एक्टिव में अगर हो रहता है तो पैसिव में होम बन जाएगा। तो ये रहा आपका प्रोनाउंस का चेंजिंग। अब हम एक लास्ट में एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे शी राइट्स पोएम्स। नाउ दिस इज व्हाट शी राइट, सॉरी ये पोएम राइट होगा, मिस्टेकनली यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, शी राइट पोएम्स होगा। ठीक है, शी राइट पोएम्स ये एक्टिव वॉइस में है। देखिए हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। इसका जो सब्जेक्ट है देखिए हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे हम इसको जैसे चेंज कर रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट हमारा शी जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया है पैसिव वॉइस में, शी हर होके आ गया है, और पोएम्स जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में आ गया है। पोएम्स राइट्स जो था वो फर्स्ट फॉर्म, राइट जो था वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन होके आ गया है। और यहाँ पे जैसे कि प्लूरल है पोएम्स तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो प्रपोजिशन बाई है वो न्यूली फॉर्म ऑब्जेक्ट के पहले बैठा रहे हैं। सो यही है आपका पूरा वॉइस। आई होप आप सबको ये क्लियर है। इफ़ यू हैव any form of doubt, we'll definitely do doubt clearing session. This was hurriedly made up because I want you to understand this before your phase and examination for both the arts, commerce and science students. So I hope it is clear to all of you. We'll meet again with new video very soon. Thank you for watching. Goodbye.